भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन पीठी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमेश्वरी राज अभय चरण आनंद भक्त वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा श्री गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की द्वारका धाम की अयोध्या धाम की पंढरपुर धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय गौर प्रेमानंदे। All the glories to the assembled devotee, all the glories to the assembled devotee, all the glories to the assembled devotee, all the glories, all the glories, all the glories Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Nashtapraisha Bhatreshu. Ashtapraeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtuti. Bhakti Bhavati Naishtuti. हरे कृष्ण। आज हम दूसरा स्कंद भागवतम से 9वां अध्याय और 6वां श्लोक उसके पर चर्चा करेंगे। सचिन्तयान्वक्षरमेकदम्बमं दयमक्षरैकदम्बं स उपश्रीनोद्विरिनदितं वचो विभु स्वदक्षराद्विर्नदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्सो दशमेकविंशमं स्पर्शेषु यत्सो दशमेकविंशमं निष्किञ्चनानां नृपयार्दनं विभु निष्किञ्चनानां नृपयार्दनं विभु। Translation: While thus engaged in thinking in the water, Brahmaji heard twice from nearby 2 syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In Sanskrit language, the consonant alphabets are divided into 2 divisions, namely the Sparsha Varnas and the Talavya Varnas. From Ka to Ma, the letters are known as Sparsha Varnas, and the 16th of the group is called Tha, whereas the 21st letter is called Pa. So when they are joined together, the word Tapa or penance is constructed. This penance is the beauty and the wealth of the Brahmanas and the renounced order of life. According to the Bhagavad philosophy, every human being is meant simply for this tapa and for no other business, because by penance only can one realize his self and self-realization. Not sense gratification is a business of human life. This tapa or penance was begun from the very beginning of the creation, and it was first adopted by the Supreme Spiritual Master, Lord Brahma. By tapasya only can one get the profit of human life, and not by a polished civilization of animal life. The animal does not know anything except sense gratification in the jurisdiction of eat, drink, be merry and enjoy. But the human being is made to undergo tapasya for going back to Godhead, back home. When Lord Brahma was perplexed about how to construct a material manifestation in the universe, and went down within the water to find out the means and the source of his lotus seat, he heard the word tapa vibrated twice. Taking the path of tapa is the second birth of the desiring disciple. The word upashrano is very significant. It is similar to upanayana,
or bringing the disciple nearer to the spiritual master for the path of tapa. So Brahmaji was thus initiated by Lord Krishna, and this fact is corroborated by Brahmaji himself in his book, the Brahma Samhita. In the Brahma Samhita, Lord Brahma has sung in every verse, Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Thus Brahma was initiated by the Krishna mantra, by Lord Krishna himself, and thus he became a Vaishnava or a devotee of the Lord before he was able to construct the huge universe. It is stated in the Brahma Samhita that Lord Brahma was initiated into the 18-letter Krishna mantra, which is generally accepted by all the devotees of Lord Krishna. We follow the same principle because we belong to the Brahma Sampradaya, directly in the disciplic chain from Brahma to Narada, from Narada to Vyasa, from Vyasa to Madhva Muni, from Madhva Muni to Madhavendra Puri, from Madhavendra Puri to Ishwar Puri, from Ishwar Puri to Lord Chaitanya, and gradually to his divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, our divine master. One who is thus initiated in the disciplic succession is able to achieve the same result or power of creation. Chanting of this holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord. Simply by such tapasya or penance, the devotee of the Lord achieves all perfection like Lord Brahma. Om Ajnantimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaykam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Guru Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunatham Pitam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Variyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanutamsha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamani Haripriye Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। While thus engaged in thinking, what Brahmaji heard twice from nearby, the two syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सभी भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और बहुत समय के बाद, क्योंकि यही महीने में सभी भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे, इसलिए बहुत सारे भक्त जगन्नाथ भी गए थे, और जो भक्त नहीं जा पाए इसलिए ये कार्यक्रम नहीं हो रहा था, तो हम क्षमा चाहते, पर गए मंगलवार लगता है आप लोगों को जगन्नाथ जी का प्रसाद में मिला हो। सो ये हमारा सौभाग्य है कि वापस आप जैसे भक्तों से मिलने के लिए हमारे देश में आज आदित्य प्रभु आए। ऑफ कोर्स इज वेल वर्स्ड एंड वेल क्वालिफाइड। जब मिले मुझे तो मैं उनको बताया कि आज आप होना चाहिए, तो इसे नो आई कम टू हियर, सो प्लीज बेस्ट फॉर योर प्रेयर्स। तो आज का जो श्लोक है मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको इतना समय होगा। कोई बता सकते हैं क्या चैप्टर चल रहा है और क्या प्रसंग चल रहा है? बहुत समय होने के बाद मिल रहे। एनीवन, एनी गेसेस? कुछ भी? नो प्रॉब्लम। ये चैप्टर दूसरा स्कंद भागवतम का है, जिसमें परीक्षित महाराज के जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, और तब वो श्रृंखला के बारे में बताते हैं जो प्रश्न ब्रह्मा जी को कैसे स्वयं भगवान ने दिया है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय में हम लोग जैसे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी बताते कि एक ऐसे ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं। द फर्स्ट बॉर्न बीइंग, पहला व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जन्म लेते हैं वो है ब्रह्मा। गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से एक कमल का फूल उनके नाभि से निकलता है, और जब ब्रह्मा जी देखते हैं पूरा सभी जगह पे अंधकार छाया हुआ है और उनको पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ। तो गए मंगलवार जब हमें अवसर मिला था, तो उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन अतात ब्रह्म जिज्ञासा, हु एम आई, जैसे हम लोग देखते हैं ना साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी 6 डे भगवद गीता कोर्स, तो फर्स्ट दिन का ये था हु एम आई। तो ये प्रश्न पहला ब्रह्मा जी पूछते हैं, मैं कौन हूँ? हु इज माय फादर, हु इज माय मदर, मैं कहाँ से आया, कहाँ से? और जब देखते कि पूरी जगह पे अंधकार है, बैठा कहाँ हूँ, तो तभी ब्रह्मा जी को ये जो दो शब्द है, ये जो दो शब्द है तप, ये उनको सुनाई देता है। वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत नजदीक में उनको सुनाई देता है तप। तो तभी उनको समझ में आता है कि अपने आप को जानने के लिए और अपने स्रोत को पहचानने के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है। तो आज श्रील प्रभुपाद ये दो
कोई शब्द के बारे में बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस वर्ड। हालांकि है 2 शब्द, पर इसमें गहराई बहुत है। तप, तपस्या, तपस्या। ये क्यों है तपस्या? प्रॉपर बताते हैं, वेरी नाइस वर्ड, बहुत ही अच्छा होंगे। अगर आप तात्पर्य सुने, मैं पढ़ते जा रहा था तो प्रॉपर बताते हैं ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए दिया गया है, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तपस्या है। क्योंकि 84 लाख योनि में ब्रह्मांड करते करते मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसलिए हम सुनते हैं बड़े संत महापुरुष और सभी शास्त्रों में बताते हैं, सभी लोग मानव जन्म के लिए कितना महत्व देते हैं। पुरंदरदास हमारे जो दक्षिण मध्य संप्रदाय में है, वो एक गीत गाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल गीत, मानव जन्म एष्टु दोड्डदु। मतलब बोलते थे मानव जन्म कितना दुर्लभ है। और कितने संत महाराज, तुकाराम महाराज और बड़े बड़े आचार्य लोग, क्योंकि ये क्यों वापस दोहराते हैं, ये क्यों बताना पड़ता है, मानव जन्म यष्टु दोड्डदु, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। ओ माय डियर लिविंग एंटिटीज, ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस। क्योंकि हमें याद दिलाने के लिए, कॉन्स्टेंटली हमें याद दिलाने के लिए, क्योंकि मन बोलते ना, उसको हमेशा उसको याद करवाना पड़ता है। भाई समझ ले, योर मेन ड्यूटी इज योर गॉट अ ह्यूमन लाइफ। और स्पेशली इन द एज ऑफ कलियुगा, जब मंदमती रहते हैं, हम जैसे लोग मंदमती है, एक बार बोलने से पता नहीं चलता है, तो उसको वापस हमेशा एवरी मोमेंट उसको याद करवाना पड़ता है। रोज उठ के याद करना पड़ता है, बेटा याद है ना, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। डेली इट इज अ डेली रूटीन। क्योंकि एक आदत बनने के लिए उतना सुलभ नहीं रहता है। बोलते ना, हैबिट, प्रैक्टिस मेक्स हैबिट। रोज करते 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 एक हैबिट बन जाता है। इसलिए 84 लाख योनि में भ्रमित करते करते एक चांस मिलता है कि नाउ यू गॉट अ ह्यूमन लाइफ। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ये लाइफ किसके लिए है, व्हाई दिस ह्यूमन लाइफ इज अवॉर्डेड। प्रॉपर क्लियरली वहां पे कोमा मार्क करते, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ टू डू तप। इसलिए ही दिया गया है, इसलिए ही दिया गया है। आज आप लोग इतने बड़ी रूप से इकट्ठा हुए हैं, ये तपस्या है, एक तपस्या है। क्योंकि हालांकि आप लोगों को पता है, मैं कुछ नया कथा तो नहीं बोलूंगा, आपको वही ब्रह्मा जी के बारे में बताऊंगा, श्रीमद् भागवतम। और मेरा लेक्चर कुछ उतना कोई रोमांचक और कोई उतना मजबूत टूटा फूटा हिंदी में है, फिर भी आप लोग वो तपस्या लेके आके सुन रहे, लेट मी हियर इट। ये भी एक तपस्या है, इट इज अ तपस्या। शब्दों का महत्व नहीं है, बट इट इज वासुदेव कथा, भगवान की कथा के बारे में बताया जा रहा है। लेट मी गिव एन ऑरल रिसेप्शन, ये है तपस्या। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं होल पर्पस इज टू डू तपस्या। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो आत्म ज्ञान, अपना आत्म साक्षात्कार करना है, तो एक ही मेथड है, गुरु तपस्या।
देखिए एक्चुअली हम भौतिक चीज में भी देखते हैं ना, अगर हम विद्यार्थी हो या हमारी भौतिक कार्य में अगर हमें प्रगति करना है तो उसमें भी तो तपस्या ही है। जब हम विद्यार्थी रहते तो हमारे माता पिता या गुरु और सब लोग टीचर लोग यही बोलते हैं, यार प्रयास केले बिना रिजल्ट प्राप्त नहीं होना, चांगला मार्क मिलना नहीं। उसी तरह बोलते ना, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। कुछ बताते कि कुछ प्रगति करना है या जो भी, अगर हम देखते हैं कि कोई विद्या में भी कुछ प्राप्त करना है तो अपने खेल कूद को छोड़ना पड़ता है, टीवी को त्याग करना पड़ता है। जब उस समय में देखता था, कभी हम लोग छोटे थे, आजकल के जैसे नहीं है ये आईपीएल मैच और ये सब, कभी कभी हमारे जो फाइनल एग्जाम के टाइम ये वर्ल्ड कप आता था, वर्ल्ड कप मैच। और अगर आप 12वीं स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में हो और सपोज आप अगर साइंस स्टूडेंट हो और आपका लक्ष्य है इधर इंजीनियरिंग या मेडिकल लेना, और जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो बोल रहे प्लीज स्टूडेंट्स बी अलर्ट, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, वर्ल्ड कप को छोड़ दो इंडिया पाकिस्तान का मैच बाद में देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट अच्छा होना है तो ये तपस्या करना पड़ेगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसी तरह बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे प्रॉपर क्लियरली बताते हैं व्हाट इज तपस्या, तपस्या है क्या और तपस्या करना क्यों चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, तपस्या है क्या और क्यों करना चाहिए। अरे मस्ती में रहो, मौज मस्ती जो आया खाते रहो, अच्छे से मिलो, ये सब तपस्या ये सब करने की क्या जरूरत है। मैं आप लोग से पूछता हूँ क्यों करना चाहिए तपस्या, और तपस्या करने का महत्व क्या है। Why should we do tapasya? Prabhupada says clearly, human life is meant for tapasya. क्यों? मतलब मौज मस्ती ज्यादा होगी इसलिए तपस्या करना चाहिए। Why should we do tapasya? माताएं बताएं, कोई बोल सकते why human life one should do tapasya? Anyone? Krishna conscious is the vast science. किधर भी आप कुछ भी बोल दो, बता किधर ना किधर तो हिट हो जाएगा। Any opinion? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए। वेरी नाइस। क्या हुआ पुनः पहले पूर्व जन्म में वेरी नाइस आंसर। पहले के जन्म का जो हमने कर्म किया है उसको सुधार करने के लिए हमें, और वापस हमें इस जन्म में जरा व्याधि चक्कर में नहीं फंसने के लिए हमें तपस्या करना। प्रभु जी, एनीवन? बैक टू गॉडेड। रूपेश प्रभु सीधा आइए मींस Prabhupada clearly says one should do tapasya, go back home, back to God. Very nice. ये सभी आपको भी बोला क्योंकि ये बराबर है। तपस्या मतलब Prabhupada says reformation, rectification, purification. जैसे माता जी ने बोला पहले जन्म का जो है वो तो रिफॉर्मेशन करना ही है ना, रेक्टिफिकेशन, अगर जो पहले जन्म में पाप किया वो तो करना ही है, और उसके बाद शुद्धिकरण तो होना चाहिए। बैठे बैठे थोड़ी होता है शुद्धिकरण, कुछ तपस्या तो करना चाहिए तबे नहीं। क्योंकि होते हैं ये जड़ विद्या जो कितने जन्म जन्मांतर से 84 लाख योनि में हम ऊपर नीचे गए, जो पैकेज हम बैगेज पकड़ के आए, एनिमलिस्टिक मेंटालिटी, वो इस मनुष्य
मनुष्य जीवन नहीं हम सुधार सकते हैं। अभी कुत्ते बिल्ली के लिए ये तपस्या लागू नहीं है। यहाँ पे ऑल आर इनवाइटेड एक्सेप्ट डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि वो उनका कर्म के वजह से वो शरीर मिला है और वो शरीर में तपस्या नहीं कर सकते हैं। That body is not meant for tapasya. That body is meant for sense gratification. वो इंद्र तृप्ति के लिए शरीर दिया गया है, ये शरीर तपस्या के लिए गया है। हम क्या करते हैं, जो भक्ति में रुचि लेते हम उल्टा करना ट्राई करते हैं। मनुष्य शरीर भी अगर हम 4 चीज के लिए कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, खाना, सोना, मैथुन करना और झगड़ा करना, इसके लिए रखे हैं, तो हमें और पशु पक्षी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली बताते, तपस्या इज फॉर रिफॉर्मेशन, फॉर रेक्टिफिकेशन एंड फॉर प्यूरिफिकेशन। अगर हम हमारे पहले जो लाए हुआ पैकेज को क्लियर नहीं करते और वापस नहीं करना चाहिए, और हमारा जो स्वाभाविक, जैसे रूपेश प्रभु बताए, टू रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडेड इज द पर्पस ऑफ तपस्या। बोलते ना, जो हमारा बोलते ना, अनादिकाल से ये जीव भगवान को छोड़ के इस भौतिक जीवन में ही पड़ा हुआ है। अनादिकाल से इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। When did we give up our spiritual world? भगवान के साथ जो हमारा संबंध था, ये कब हमने छोड़ के आया, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। 10 लाइफ, 100 लाइफ, 1000 लाइफ, अनादिकाल, उसका टाइम पीरियड ही नहीं। सोच लीजिए, वो बद्ध जीव जो अनादिकाल से आध्यात्मिक दुनिया छोड़ के इस भौतिक जीवन में पड़ा हुआ है, तो कितना उसका अनर्थ भरा हुआ है। It's filled with dirty matters. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपने आप को शरीर समझना, ये सबसे बड़ा झाड़ा अनर्थ है। कोई क्या सुलभ से निकल जाएगा? मस्ती करो, मौज करो, लास्ट में भगवान का नाम लो। इज इट सो इजी? इज इट सो इजी? प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। आपको पता है, ये सोना, जो वो माइन वर्कर्स जो करते हैं ना, जो माइन, सोना तो मिलता है, वो मेटल है, इट इज वन ऑफ द मेटल, या डायमंड। जब सोना जब भूमि से निकालते हैं तो तुरंत क्या वो चमकने लगता है? Does it start shining? पर लोगों को पता है इसका क्वालिफिकेशन इसमें है, but it requires purification. इसका प्यूरिफिकेशन होना है, इसको आग में डालना पड़ता है। There are various process of reformation. उसका अल्केमिक केमिकल मेथड में द्वारा उसको वो प्रोसेस में लेके आना पड़ता है, और वो इतना दुर्लभ है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए उसका कॉस्ट उतना ज्यादा है। उसी तरह ये जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस और ऑल नॉलेज, सभी ज्ञान और शाश्वत और आनंद पूर्वक। पर क्योंकि ये बद्ध जीव अनादि काल से इसमें जुड़ा हुआ है और बाकी जन्म में कोई इसको चांस नहीं, जब ह्यूमन लाइफ मिलता है, मनुष्य जीवन, तभी ओनली वन एक्टिविटी, टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। इसलिए मनुष्य जीवन दिया है, टू गेट योरसेल्फ प्यूरिफाइड। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्रभुपाद बताते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड? By tapasya only can one get the profit of human life.
and not by a polished civilization of animal life. Not by a polished civilization of animal life. मनुष्य जीवन का ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके अपना ह्यूमन लाइफ एकदम सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड एनिमलिस्टिक लाइफ करने के लिए, टू बी अ वेरी सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैनली। कार्य क्या है? रहने का स्वाभाविक मतलब हाई लिविंग स्टाइल बट थिंकिंग लाइक एनिमल्स, हाई एकदम हाई लाइफ। पर पर्पस क्या है? just to eat comfortably, to mate comfortably, to fight comfortably and to sleep comfortably. इसके लिए क्या? इसके लिए मनुष्य के ओके आज आप लोग थाने में हो, my purpose of Thane is to elevate myself to go to South Bombay. यहाँ से मेरा एक ही उद्देश्य है, ऐसा पैसा कमाओ, ऐसा पैसा कमाओ ताकि मैं यहाँ से सोबो साउथ बॉम्बे चले जाऊं। और वहां के वालों का क्या है? मैं इतना पैसा कमाऊं ताकि मैं बाहर गांव चले जाऊं, आई कैन गो टू यूएस। फॉर व्हाट पर्पस? उद्देश्य क्या है? ताकि मुझे अच्छा बड़ा मैंशन मिले, आई कैन स्लीप नाइसली, अच्छा पैलेटेबल खाना मिल जाएगा, और देन आई कैन हैव अ नाइस पार्टनर टू मेट नाइसली, और अच्छा बंगलो, और ये ताकि आई कैन फाइट, ये मेरा है ये तेरा है, दिस इज मी, आई एंड माइन, दैट इज नॉट मी, ये मेरे संबंधी लोग हैं। ये तो सभी प्राणी पक्ष भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियरली प्रॉब्लम है, तपस्या इज मेंट फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड, नॉट टू इंक्रीज योर पॉलिश्ड एनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। इसके लिए तपस्या है। ऐसे तो विद्यार्थी भी तपस्या कर रहे हो आईआईटी क्रैक करने के लिए, फॉर व्हाट पर्पस? सो दैट आई कैन गो एंड हैव अ ग्रीन कार्ड, वहां पे रह के मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा, और देन धन दौलत ही मिलेगा, और देन एवरीवन हैव अ नेम। These are all secondary. इसके लिए ह्यूमन लाइफ इज नॉट अवॉर्डेड। जेई क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए, टू बी अ बिग बिजनेसमैन, टू बिकम अ वेरी, these are not the purpose। भागवत में अगर सुखदेव गोस्वामी जी को बताना है तो वो भी बता सकते थे। The primary activity of the human life is to go back home, back to Godhead by doing तपस्या। इसलिए तपस्या करना पड़ता है, so that our constitutional position में हूँ कौन, what is my purpose of my life, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, how should I go back, इसके लिए तपस्या है, ये पर्पस है। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही करना है तो कोई। पर आप लोग ये प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे मैंने बताया तपस्या इज सो दैट ये चार मेंटालिटी निकलना चाहिए। पर ऐसे तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ने तपस्या किया है। गणगोल आप प्रभु जी बोल रहे कि तपस्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। हाँ, तपस्या मनुष्य की, वैसे तो रावण और हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या किया है। दे आल्सो परफॉर्म तपस्या, है कि नहीं? उनका तपस्या न भूतो न भविष्यति। हिरण्यकश्यप का तपस्या था मंदार पर्वत में जाकर अपने बोलते ना व्हाट यू कॉल टोनीज, अपने पैरों के जो उंगलियों के ऊपर, उसके ऊपर बैलेंस करके हाथ ऊपर करके 1000 साल तपस्या किए थे। 1000 सेलेस्टियल इयर्स, मनुष्य जीवन का भी नहीं, 1000 देव देवगण के वर्षों के हिसाब से तपस्या किए थे। तपस्या ना, आपने बोला तपस्या करना, तो उसका तपस्या और भक्तों के तपस्या में फर्क क्या है? What is the difference? मैं आपसे पूछूं। हाँ? तपस्या डन फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मानव हित के लिए, अगेंस्ट खुद को भगवान करने के लिए। वेरी गुड। देखिए उद्देश्य क्या है, इसलिए प्रभुपाद क्लियरली मेंशंस तपस्या टू कनेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गॉड।
तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? ऐसे तो तपस्या बहुत लोग, कोई लोग भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल, आज से मैं अन्न भी नहीं लूंगा, ये मैदान में वो मैदान में बैठ के तपस्या करूंगा। किसके लिए? उसका पत्नी को हटाने के लिए, मरने तक। Is that तपस्या? That is तपस्या। पर क्या उसके लिए उद्देश्य है? That is one of the duty. But purpose of human life, प्रभुपाद इसलिए शास्त्र बताते हैं तपस्या should be to re-establish our lost relationship with God. रावण और हिरण्यकश्यप भी तपस्या किए थे, किसके लिए? What was the उद्देश्य? उद्देश्य ये था ताकि मैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन ख्याति बढ़ जाए, मैं बाकी के ऊपर कंट्रोल रखूं। That is what तपस्या। आपका उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। और अगर मैं आपसे और एक प्रश्न पूछता हूं, हिरण्यकश्यप और रावण ने भी तपस्या किया था, पर ध्रुव महाराज ने भी तपस्या किया था। रावण और ध्रुव महाराज या हिरण्यकश्यप में फर्क क्या है? वो भी 6 महीना तपस्या किए थे बिना अन्न के बिना। What was the difference? तपस्या करने से शुद्धिकरण होना चाहिए। yes. और ध्रुव क्या समझते थे? What is the difference between Dhruva Maharaj tapasya and what is the difference between Hiranyakashipu and Ravana's tapasya? प्रभु जी, माता जी, मैंने बताया कि मैं आज बोल रहा हूँ कि तपस्या करना चाहिए, तपस्या करना, तो आप लोग मुझे काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं, रावण और हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया है, तो तपस्या किया, पर ध्रुव महाराज ने भी तपस्या किया। रूपेश प्रभु और सब लोग ने बताया कि वो इन सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, पर ध्रुव महाराज ने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही किया है ना। आप लोग भागवतम पढ़ोगे तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ध्रुव महाराज तपस्या? भगवान को पाने के लिए? आई डोंट थिंक सो। ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। इज इट नॉट मटेरियल? भौतिक हुआ ना, तो फर्क क्या है? But after seeing Lord, What is the difference? गुरु ने जैसे बोला वैसे तपस्या किया। वेरी नाइस माता जी, सेम गुरु की आज्ञा से उन्होंने तपस्या किया। वैसे तो इवन शुक्राचार्य ने भी हिरण्यकश्यप बोला तपस्या करो। व्हाट इज द डिफरेंस? गुरु की आज्ञा की है ना। उन्होंने डायरेक्टली भगवान से ही जो मांगना था वो मांगा, वो मांगने से उनकी इच्छा ही फिर एंड में खत्म। वेरी नाइस। वो डायरेक्टली भगवान से मांगे थे और इसके लिए उनकी जो इच्छा है वो निकल गई। देखिए ये पॉइंट बहुत आपने बहुत अच्छा बताया। ये वर्ड तपस्या के बारे में बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु और रावण किसका तपस्या किए थे? डेमीगॉड्स। एक ने भगवान शिव जी का तपस्या किया था, दूसरे ने किया था ब्रह्मा का तपस्या। ध्रुव महाराज को नारद जी ने बताया विष्णु का तपस्या करो। लेट अस पुट देम इन डिफरेंट कैटेगरी। अभी जो अन्य देव देवगण का अर्चना करते हैं उन लोग का एक ही ड्यूटी है, क्या चाहिए बेटा, तुझे क्या चाहिए, मुझे अमर बना दो। वो तो नहीं है मेरे दुकान में, दूसरा कुछ बोल, मुझे इससे नहीं मरना चाहिए, उससे भी नहीं मरना चाहिए, वो भी दे। रावण का था मैं सबसे बड़ा भी शक्तिशाली बनूं, मैं सबसे बड़ा। उनका ड्यूटी क्या है? जो तुम पूछे वो हम देंगे। दैट इज माय ड्यूटी। मेरे दुकान में आए हो, ब्रह्मा जी की दुकान में आओ, शिव जी की दुकान में, अन्य देव देवगण, गणेश जी या जो भी है, कार्तिकेय या शनि भगवान जो भी है, उनका ड्यूटी है whatever you ask they will give as per their capacity। उनके कैपेसिटी के हिसाब से देते हैं। पर the supreme personality of Godhead, भगवान नारायण या विष्णु, उनका
तपस्या में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए भागवतम में वर्ष है, उसमें बोलते हैं that verse is there. Anyone? अगर वेदर आपके पास भौतिक इच्छा हो या ना हो, या आपका जो भी इच्छा हो, आप मेरे पास आ जाओ। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उसे बताते हैं कि जब विष्णु की आराधना या उनकी तपस्या करते हैं तो वो देखते हैं कि इसका सिर्फ इच्छा को पूर्ण नहीं करते, उसके हृदय की शुद्धिकरण भी करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने जो तपस्या किया था, उनका इच्छा था मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा महल चाहिए। I want a bigger palace than even my great grandfather. उत्तरापाद के मेरे पिताजी, मेरे माता ने मुझे हटा दिया। I want bigger palace than ब्रह्मा। ब्रह्मा लोक से भी बड़ा महल चाहिए, बड़ा लोक ही चाहिए। विष्णु की आराधना की तो क्या हुआ? क्या 6 महीना घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। और जब ध्रुव महाराज उनके दर्शन लेते हैं तो वो जो बौद्धिक इच्छा जो हृदय में थी उनका, वो अपने आप चले जाता है। क्योंकि भगवान का एक नाम है ईस, वो बौद्धिक इच्छा को खींच के लेते हैं। He steals the material desire within the heart of a devotee. जो बौद्धिक इच्छा को निकल के उसको सिर्फ आध्यात्मिक इच्छा डाल देते हैं। इसलिए हालांकि हिरण्यकशिपु और ब्रह्मा जी के सामने तपस्या किए थे, पर उनके पास उतनी क्षमता भी नहीं थी उसके हृदय के शुद्धिकरण के लिए, और हिरण्यकशिपु के पास वो इच्छा भी नहीं आई थी, क्योंकि परमात्मा के रूप में सिर्फ विष्णु सबके हृदय में बसे हुए हैं। नॉट ब्रह्मा, नॉट शिवा, नॉट गणेश। उनके पास वो क्षमता नहीं है जो बौद्धिक इच्छा को निकालने के लिए। पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु या कृष्ण की आराधना करते हैं बौद्धिक इच्छा के लिए भी, तो भगवान उसका तपस्या से आनंद प्रदान करके उसकी बौद्धिक इच्छा को ही निकाल देते हैं। इसलिए जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान विष्णु आ जाते वो तपस्या के समय बाद, तो ध्रुव महाराज बताते हैं तानाभिलाषी तपसी स्थितोहं त्वं प्राप्तवान् देव मुनि इंद्रगुह्यं काचं विचिन्वान् अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि वरं न याचे। बोलते भगवान हे वृष्णिगर्भा, हे विष्णु, मैं किसके लिए तपस्या कर रहा था? ब्रह्मा का महल, ब्रह्मा से बड़ा राज्य, पर ये सब भौतिक चीज कांच के टुकड़े के समान हैं। They are all useless. All material desires are useless. एक कांच के टुकड़े, पता है आपको कांच का टुकड़ा is very dangerous, not glass, broken pieces of glass. हालांकि सूरज के सामने चमकता है, सूरज के प्रकाश में चमकता है, पर इट इज नॉट डायमंड। कांच के टुकड़ों को अगर आप पकड़ेंगे तो खून बहने लगता है। उसी तरह भौतिक इच्छा जो भी है वो कांच के समान है, टुकड़े के समान। कांचन विचिन्वान् अपि दिव्य रत्नम। भगवान आप मुझे प्राप्त हुए, what else is there to attain? और क्या चाहिए मुझे? कांचन विचिन्वान् अपि दिव्य रत्नम। I have attained everything. ये डिफरेंस है, तपस्या में ये फर्क है। बाकी अन्य देव देवगण का पूजा हम करते हैं, किसके लिए? मनोती रखते हैं, शंकर जी की मनोती। और बोलते ना संकष्टी गणेश जी का, वेरी गुड, बट व्हाट इज द पर्पस? इज इट प्योर डिवोशन? नो। अगर मैं ये कहूंगा मेरा ये भौतिक इच्छा के लिए होना चाहिए, धनवान, गुणवान, अमरवान, ज्ञानवान, इसके लिए
so that my material achievements can come. पर कृष्ण बोलते नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें तपस्या करनी है, डू इट फॉर मी. मैं आपको भौतिक इच्छा भी दूंगा, but along with that I give you one more gift. You will have no more material desire. You will have no more. Akama sarva kamo va moksha kamo dardi. तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम. ये वर्ष भागवतम में आता है. Why one should do tapasya of Krishna? Akama sarva kamo va moksha kamo dardi. अगर you are filled with material desire, या आपके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है, still you worship me, because by worshiping you develop unalloyed attraction to my lotus feet. This is the purpose of tapasya. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रभु जी ने बताया, the whole purpose is to go back to Godhead. उद्देश्य वही है. कैसे भी भौतिक इच्छा से निकल के हमें भगवान के धाम में जाने, पर क्या कौन दे सकता है ये इच्छा? Only मुकुंदा कृष्णा can give it. अगर हम बाकी देव देवगण से हम जाते हैं, we can ask. पर अगर हम क्या उनसे पूछना चाहिए? अगर वो पूछे बिना, हाँ वो हमें जो पूछे वो देंगे, पर अगर हम उनके बताए प्लीज गाइड माय पाथ, देन दे विल डायरेक्टली गो टू कृष्णा. देयर आर मेनी डिवोटीज. हाँ, आज के समय में भी ऐसे महान भक्त हैं जो भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे, और इतना तपस्या करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये पूछा मेरा मार्गदर्शन करो, और वही शिव जी उनको बोलता है गो एंड रिजाइड इन वृंदावन. वृंदावन में रिजाइड करो. और वैसे बातें हैं. अगर हमें पता होना चाहिए अन्य देव देवगण के साथ क्या पूछना चाहिए, और भगवान और अन्य देवगण में क्या फर्क है, तपस्या किसके लिए करना पड़ता है, क्या भौतिक इच्छा के लिए करना पड़ता है? अगर हो भी, वर्शिप कृष्ण. कृष्ण ने इसके लिए मत आना, प्लीज डोंट कम. यू कम बेटा, यू कम, यू आर माइन. यू वांट चॉकलेट ना, मैं चॉकलेट देता हूं. चॉकलेट के साथ ये रसगुल्ला भी फ्री. कम ऑन, डोंट वर्शिप मी. और तेरे को इतना सैटिस्फाई कर दूंगा कि यू विल नॉट हैव एनी मटेरियल डिजायर. ध्रुव महाराज से आई डोंट वांट, बट कृष्णा बोले नो 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 ध्रुवा, यू हैव टू टेक इट. तुमको लेना ही पड़ेगा. क्यों भगवान? मुझे नहीं चाहिए. कांच पीछे नहीं, कांच हो कुछ भी हो, आई वॉन्ट यू टू टेक इट. क्योंकि तुम तो मान लिए, पर लोगों के बीच में ये भ्रमित नहीं होना चाहिए. अगर कृष्ण का पूजा किया तो थोड़ा चुटकुली बातों से भौतिक इच्छा को ही निकाल देते, हमारा भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं करते. नो, मैं भौतिक इच्छा भी पूर्ण करूंगा, बट along with that I give you a remedy. इसलिए ध्रुव महाराज का एक कथा था, ध्रुव लोक क्यों है? बिकॉज पीपल शुड हैव एन एश्योरेंस कि कृष्ण का पूजा करने भी यू विल गेट इट, बट along with that all your material desires are gone. You become completely spiritualized. ये फर्क है. ये तपस्या का कारण है. लास्ट में मैं आपको एक बोल के एंड करता हूं. बोलते ना ये तपस्या एकदम कठोर रहता है, एकदम कठोर. जैसे रोज उठ के 16 माला जाप करना. इज इट नॉट अ तपस्या? इट इज अ तपस्या. रोज उठ के 16 माला जाप करना. यार कभी एंड होगा जब 15 बार हमारे यार और भी एक माला बाकी है. जैसे जैसे माला कटते जाता है तो हमें 8 राउंड्स लेफ्ट और 8 माला और एक करना. ये कैसा तपस्या है? हाँ? बोलते हैं भागवतम में, हम ये करते करते यही तपस्या बताते ना, वो बोलते ना इट बिकम्स अ जॉयफुल एक्टिविटी. ये तपस्या बाद में तपस्या नहीं होता है. इसके लिए हमें बोलते ना पेशेंस होना चाहिए. कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग इट. जैसे सभी भक्तों के सभा में जब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल नितिन प्रभु या दामोदर सखा प्रभु या रूपेश प्रभु या आदित्य प्रभु, सब लोग यही पूछते हैं. कोई ये नहीं पूछता आपका कैसा चला बिजनेस, आपका
कैसा चल रहा है, प्रगति, प्रमोशन हो गया? देयर ओनली वन थिंग, हाउ इज योर चैंटिंग गोइंग ऑन प्रभु? हमें जाप के कैसा चल रहा है? हाउ इज योर चैंटिंग गोइंग ऑन? आई एम नॉट गेटिंग टेस्ट। लोगों जाप के ऊपर रुचि नहीं आ रहा। उनका उद्देश्य वही है। जो अगर नया वक्त सोचता है, ये क्या लोग है यार, इन लोगों ने टेस्ट, इधर तो मैं जाप कर रहा हूं, ये तो घूसा चबा के नहीं गए, और इन लोगों ने आई वांट टेस्ट को तो बोली नहीं। क्या ये तपस्या नहीं है? चैंटिंग, गेटिंग अप, मंगल आरती, ये तो तपस्या है ना। बट हाउ दीस पीपल सेइंग 32 राउंड्स, 64 राउंड्स, क्या इतना रुचि आता है? तो भगवान बताते हैं ये तपस्या ऐसा तपस्या है, one doing it gradually he develops affinity for doing that devotion activity, उसको आसक्ति डेवलप हो जाता है। वो तपस्या नहीं होता है। मत चिंता मत कथा प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के सामने बोलते थे प्रहलाद महाराज की कथा, लेट मी हियर इट अगेन 100 times। हम तो वो भागवतम उठाते हैं, इससे करने से शुद्धिकरण होता है, हालांकि बोरिंग है, पर यहाँ एक व्यक्ति बोलता है लेट मी हियर इट अगेन, क्योंकि बताते हैं द प्रोसेस इज सो जॉयफुल, वो ऑटोमेटिकली नेक्टर बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। देन इट इज नो मोर तपस्या। हरिदास ठाकुर 192 rounds, let me chant। So Prabhupada बोलते हैं the purpose of chanting Hare Krishna is that we can constantly keep on chanting Hare Krishna। ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए बताते हैं एक जो इंद्र तृप्ति है ना, इंद्र तृप्ति, हालांकि वो दिखता है बहुत अमृत के समान, पर लास्ट में उसका रिजल्ट होता है वो विष है, इट इज पॉइजन इन द एंड। और जो भक्ति है, जो तपस्या करना, जाप करना, 4 नियम का पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेट, नो गैम्बलिंग, नो इंटरनेट, नो व्हाट्सएप, नो सर्फिंग, ये तपस्या है। नो ईटिंग पिज्जा पास्ता आउटसाइड, ओनली कृष्ण प्रसाद, ये तपस्या है। इट सीम्स वेरी पॉइजन इन द बिगिनिंग, एक विष के समान है, पर करते it becomes nectar in the end। इसलिए इसके लिए हमें पेशेंस होना चाहिए। भक्तों के संग में जब हम आते हैं, when you keep on hearing स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तवद्राणि विदुनोति सुरसताम। हाँ, वो जब कॉन्स्टेंटली जब हम सुनते अमृत का, जब वो वैसे साधु लोग के साथ बताते ना सततम कीर्तयन्तम, वो साधु संतों के मुख से जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो हृदयन्तस्तवद्राणि वो निकल जाता है, एंड देन प्योर नेक्टर इज एस्टैब्लिश्ड इन द हार्ट। उसके बाद वो व्यक्ति को कोई समय वो राह दिखता रहता है, when can I take my beats and chant, when can I get up for मंगल आरती, कभी वो दिन आएगा, कभी वो दिन हमारा, when will that day be mine। तो ये प्रोसेस, ये कृष्ण भक्ति का प्रोसेस हालांकि दिखता है तपस्या, पर जब हम करते तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ नेक्टर। तो दिस इज एन एनकरेजमेंट, ये हमारे लिए एनकरेजमेंट है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो आज ये मैं यहाँ पे विश्राम देता हूँ इस कथा के लिए। हमने डिस्कस किया ब्रह्मा जी जो परम फर्स्ट पर्सनालिटी है, उन्होंने ये 2 शब्द था प से उन्होंने अपने जीवन, क्योंकि कृष्ण भक्ति में प्राप्त होना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो तपस्या की जरूरत है। और कैसे तपस्या होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारा उद्देश्य क्या है, और भगवान और भौतिक बाकी अन्य देव देवगण की आराधना या तपस्या करने में क्या फर्क है, और कृष्ण भक्ति में जो हम तपस्या करते क्या वो तपस्या है। हम करते वो तपस्या बाद में तपस्या नहीं होता है, वो अमृत हो जाता है।
जिसके लिए हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा जी, दादा प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास है जी। तो जी इसमें जो परपट में एंड में मतलब गुरु के मतलब ब्रह्मा जी के गुरु कृष्ण है, वैसे वो पॉइंट आया था। और अभी गुरु पूर्णिमा भी गया है, तो अभी जो शिष्य हम लोग बने हैं हमारे गुरु के जो रिस्पेक्टिव है, तो हमें कैसे अच्छा शिष्य बनना चाहिए ताकि हम हमारे गुरु को प्लीज हो सके। वेरी नाइस क्वेश्चन। हालांकि आदित्य को मैं लास्ट में मैंने टच नहीं किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी को भगवान दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देके उपनयना मतलब भगवान को करीब आना, ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड आना, और उनके बाद उनको 18 शब्दों का मंत्र देते हैं। और तभी प्रभुपाद बताते हैं सभी वैष्णव, ये जो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कनेक्टेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं एक शिष्य का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो सिर्फ हम गुरु के साथ संबंध नहीं जोड़ाते हैं, हम पूरे एंटायर गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए then it becomes a prime responsibility of that candidate to take Krishna consciousness very seriously. वो व्यक्ति का परम कर्तव्य बनता है कि I am bounded, मेरा फर्ज बनता है कि मेरा दिनचर्या इतना सीरियसली होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ भी गलती किया या मैंने थोड़ा मुझसे कुछ बोलते ना कैलोस तो इजीली ले लिया, तो वो कलंक पूरे गुरु शिष्य परंपरा में आ जाता है। अरे तुम तो दीक्षित भक्त हो, यू आर एन इनिशिएटेड डिवोटी, तो यू शुड नो द ग्रेविटी। इसलिए प्रभुपाद को बताया कि यही एंटायर जब भक्ति के मार्ग में प्रगति करना है तो गुरु की शरणागति जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गुरु दिया मंत्र है उसको वन शुड टेक इट वेरी सीरियसली। इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कलि संकल्प परिषद में स्वयं ब्रह्मा नारद जी को बताते वन शुड चैंट दिस महामंत्र, क्योंकि ये गौड़ीय गुरु इसमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आया हुआ मंत्र है। वन शुड टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये कोई ऐसे कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है, इट हैज कम फ्रॉम द चेन ऑफ कनेक्शन। और जब वो व्यक्ति गुरु के साथ संबंध जुड़ जाता है तो डायरेक्टली गुरु के द्वारा इज कनेक्टेड टू गॉड। एक ग्रेविटी हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि बट नेचुरली एक बार परम पूज्य नाथनाथ महाराज बता रहे थे, टेकिंग इनिशिएशन इज नॉट वेरी बिग थिंग, दीक्षा लेना कोई भी ले सकता है, पर मेंटेनिंग द वार्म्थ ऑफ इनिशिएशन दैट इज अ बिग थिंग। कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, दिन रात याद रखना उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आई हैव टू बी लॉयल, डेडिकेटेड, मेरा उद्देश्य वो है। बाकी भौतिक जिसका लोग नहीं, नो, आई हैव चैलेंज बट आई वांट टू बी सीरियस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए मैंने गुरु का शरणागति लिया है। What is taking a guru? Guru is not for fashion. Prabhupada saying, you're not like, guru is not like a dog. Today I got an Alsatian dog, I got a Doberman dog. Society के लिए बड़े-बड़े कुत्ते रखते हैं। Guru take accepting guru is not a fashion. It is a sign of a serious of a disciple that he wanted to solve this problem of material world. Accepting guru is not a fashion. वो गुरु अच्छा है, ये गुरु no. How can I be dedicated to the entire Guru Shishya Parampara?
This is the first preliminary qualification. इसलिए रूप गोस्वामी एक लास्ट वर्ड बोलता हूँ. आदित्य बोलते, what should be the duty of a disciple? What should be the duty of the disciple? एक बोलते बोनाफाइड गुरु और बोनाफाइड डिसाइपल का क्या ड्यूटी होना चाहिए? रूप गोस्वामी बताते, the preliminary qualification, the पहला qualification इस शिष्य का क्या होना चाहिए? The preliminary qualification of a disciple accepting a guru is that he should consider this material world useless. जो व्यक्ति गुरु को शरणागति में जाता है, उसको पहला उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस भौतिक चीज के साथ कोई लेन देन नहीं है. It is all useless. मैं भौतिक चीज को आध्यात्म में नहीं डाल सकता हूं. आध्यात्म के प्रगति के लिए मैं आया हूं. I don't have any connection. This is just a duty. ये first and the only foremost qualification of a disciple, if he wants to progress. This is important. Does that answer the question? Hare Krishna. I think it's fine. स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BVD founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivajgacharya Astotra Sakshi Shrimad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की जय। श्री गौरनिताय की जय। श्री मायापुर वृंदावन धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामय यमुनामय की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Jai Shri